Hello everyone, I'm Dr. Muattar Hanif, Assistant Editor at Medical News Pakistan, and I'm so excited to welcome you all to this live session, What to Do When There Is Nothing to Do. And I'm so thrilled to welcome our speaker, Professor Dr. Muhammad Hussain Rana. He's the Chairman, Pakistan Red Crescent Task Force for COVID-19 Crisis. He's also the Chief Editor of Journal of Pakistan Psychiatric Society, Chairman, The Healing Tribe Pakistan, Chair of Department of Behavioral Sciences of University of Health Sciences, Lahore. Dr. Rana has been the author of 12 books and more than 61 national and international publications. He's also been declared by the best university teacher in the field of medicine by Higher Education Commission and is the recipient of Sitara Imtiaz from the government of Pakistan. He's been retired from Pakistan Armed Forces as brigadier after holding various academic, clinical, and teaching positions, including advisor in psychiatry and the founding commander of Armed Forces Institute of Mental Health. He's also been the Dean of Faculty of Psychiatry of College of Physicians and Surgeons, Pakistan. And with that, I'll allow Dr. Mordan to please join us in the video. And hello. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah. जी, अस्सलाम वालेकुम to all our viewers who are here to listen to what to do when there is nothing to do. आपको ये टॉपिक अजीब नहीं लगा, मोहतर? Sir, actually, we all have a lot of time at our part. लेकिन उसको effective तरीके से कैसे use किया जाए, because there's a limit to, if we want to sleep, then there's obviously a limit to that. If we just want to spend our time on cell phones, then there's a limit to that. And I think we have reached that level now. So what to do next? मैं आपको बताता हूँ मैंने आपसे ये क्यों पूछा. मैंने इसलिए पूछा कि मैं एज ए चाइल्ड हमेशा ये ड्रीम किया करता था कि ये जो टाइटल है कि कुछ ऐसा हो सकता है कभी जिंदगी में कि nothing to do on earth, because we are pushed as children constantly to do something. और अगर आप कोई बड़ा आपको कहीं बैठा देख ले वो कहता है तुम्हें तो काम ही कोई नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं रहे, चुप करके बैठे हो, वक्त जाया कर रहे हो. So we have heard this so much that one of our fantasies have been nothing to do. In fact हमारे यहाँ जो जन्नत का एक तस्वीर पाया जाता है उसमें ये भी है कि वहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा. तो हमें ये इस दफा शायद कोविड-19 ने ये एहसास दिलाया है कि व्हाट अ ट्रेजेडी इट कैन बी व्हेन यू हैव नथिंग टू डू. ये जो आप अभी बात कर रही हैं, ये एक लिमिट होती है सोने की, एक लिमिट होती है किताब पढ़ने की, एक लिमिट होती है टेलीविजन देखने की. कब तक यू कैन बी इन अ स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग एट ऑल. सो whereas it is a treat and a dream and a fantasy for a period of time, human beings are not really designed to be doing nothing at all. तो ये एक बहुत बड़ी important कैफियत है which we need to share with our viewers this morning, that what to do when there's nothing to do. अब इसमें सबसे मजे की बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, and I think थोड़ा सा इसके बारे में हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, सोच विचार करने की जरूरत है, वो ये है कि हमारी जो ओरिजिन है उसके बारे में बहुत सारे तस्वर आते हैं, साइंटिफिक भी, स्पिरिचुअल भी, रिलीजियस भी. लेकिन एक बात जो जहाँ काफी एस्पेक्ट्स रिलीजन के, स्पिरिचुअलिटी के और साइंस के मर्ज होते हैं, वो ये है कि इंसान की तख्लीक में पानी का बहुत दखल है. बाज़ जगह तो ये कहा गया कि हमने तुम्हें पानी से तख्लीक किया. साइंस ने ये कहा कि when there was nothing, it was water. And the earth started to get into a condensed state of water and so on and so forth. अब इस वक्त हम बात नहीं कर रहे उसकी, लेकिन पानी से हमारी ओरिजिन का एक लिंक है फिलोसॉफिकली, आप समझ लीजिए. अब आप गौर कीजिएगा कि पानी हमेशा दो कैफियतों में होता है, जब वो पीने के काबिल हो और पाक और पाकीज़ा कहलाए. वो कौन सी कैफियत होती? वो जब वो बहता है. तो वो पानी जो स्टैग्नेंट हो और एक ही जगह खड़ा हो, दैट इज इट इज डूइंग नथिंग. तो वो पानी इस काबिल ही नहीं होता कि वो पिया जा सके, उसको किसी काम में लाया जा सके, उससे वजू किया जा सके, उसको किसी तरह भी इस्तेमाल किया जा सके. और फिर उसके अंदर काई उगने लगती है और उसके अंदर अजीब किस्म के जरासीम रहने शुरू हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, जाने क्या क्या होता है. सो वी एसोसिएट लाइफ देयरफॉर विद रनिंग वाटर. Running water की, I'm sure you know this and all of us know,
कि रनिंग वाटर की कैफियत ये होती है कि उसके अंदर लहर बनती है, और लहर में एब्स एंड क्रेस्ट्स होती है, यानी कि मद्दो जजर होते हैं, मद्दो जजर। सो कहने का मतलब मेरा ये था, या इस बात को आप तक पहुंचाने का मतलब ये था कि कम से कम कोविड-19 के बाद हमें ये बात तो क्लियर हो गई, और हो जानी चाहिए, मुझे तो डेफिनेटली हुई है, कि ये जो ड्रीम था ना कि कुछ नहीं करने वाली कैफियत, ये कोई खास ऐसा फैसिनेटिंग सिलसिला नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स आर बेस्ट एट व्हेन दे आर इन अ मदोजर, व्हेन दे आर इन मूवमेंट। एक मूवमेंट है, लेकिन चूंकि हमें हर वक्त ये कहा गया है हमेशा से कि कुछ नहीं करना, वक्त ज़ाया करना होता है, तो फिर वी फील वेरी गिल्टी अबाउट द फैक्ट कि हम कुछ नहीं कर रहे। सो आजकल एक फिनोमिनन ये भी है कि जब आप सारा दिन देखते हैं मैंने कुछ नहीं किया, तो यू एंड अप फीलिंग हॉरिबली गिल्टी इन द इवनिंग्स दैट व्हाट अ यूजलेस एग्जिस्टेंस आई हैव। सो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों कैफियतें इंपॉर्टेंट। हम साइकोलॉजिकली या एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इसको इस तरह देखते हैं that human beings need to have two modes of existence। ये बात जरा से गौर से सुनने वाली है मोहतरम। दो कैफियतें हैं, जैसे मद्दोजर है ना, जैसे अप्स एंड डाउन्स हैं, इसी तरह से दो कैफियतें हैं जिसमें इंसान को होने की जरूरत है अगर वो एक मेंटली हेल्दी, साइकोलॉजिकली हेल्दी एग्जिस्टेंस रखना चाहता है। और वो कैफियतें हैं, एक द डूइंग मोड, यानी उसका कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है, मूवमेंट बहुत जरूरी है, एक्शन बहुत जरूरी है, डूइंग मोड एंड बीइंग मोड। डूइंग मोड एंड बीइंग मोड। बीइंग मोड जो है ये यूं समझ लीजिए कि प्री रिक्विजिट है डूइंग मोड में जाने के लिए। यूं कह लीजिए कि ये मेरे पास मेरा मोबाइल है, ये रात को अगर बीइंग मोड में ना होता, दैट मीन्स कि मैंने इसको ऑफ करके चार्जर पे ना लगाया होता, तो ये अभी डूइंग मोड में नहीं होना था। बिल्कुल इसी तरह से आपको पता है ना, ये जो मोबाइल है ये डिजाइन किया गया है, कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए हैं विद ब्रेन इन माइंड, ह्यूमन ब्रेन की तर्ज पर बनाए गए हैं, उसके करीब करीब भी नहीं है लेकिन उसकी तर्ज पर बनाए गए हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि जो चीजें जहन के मोड पर बनाई गई हैं, उसके तरीके पर बनाई गई हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो दो कैफियतों में रहें, चार्ज हो और फिर इस्तेमाल। तो हमें सबसे पहले इस गिल्ट को हटाना है कि यू आर डूइंग नथिंग, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग टाइम। लेकिन ये भी तो तय है कि इस मोबाइल को जो सर ये 80% चार्ज है तो ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये 100% ही चार्ज ही स्टेट में रखते रहे और सारा वक्त ये चार्ज ही होता रहे और काम बहुत थोड़ा सा करे, लेकिन अब तो फिर कुछ अर्से बाद इसकी बैटरी बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी एंड इट विल बिकम यूजलेस। सो ये भी नहीं हो सकता यू डू कंप्लीटली नथिंग। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। दूसरी बात ये भी है, आप कभी गौर कीजिएगा एज ए डॉक्टर, या अगर हम डॉक्टर नहीं भी हैं तो भी आपने अपनी कभी ना कभी ईसीजी जरूर देखी होगी। ईसीजी की जो वेव्स हैं वो अगर मैं एक कागज पर बनाऊं तो वो इस तरह की बनेंगी। यानी कि उसमें एक हिस्सा तो ऊपर जाता है एक्टिविटी का, एक फिर नीचे जाता है, यानी कि वो बेस लाइन जो होती है ना उससे नीचे चला जाता है और फिर ऊपर जाता है। तो हम ईसीजी को, जिंदा इंसान की ईसीजी को उस वक्त मानते हैं जब इसके अंदर दोनों तरह की वेव्स हो, वो जो ऊपर जा रही हैं और वो जो नीचे जा रही हैं। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जो नीचे जा रही वेव्स होती हैं वो इस बात की दलील होती हैं कि ये वो टाइम था जब हार्ट वाज रेस्टिंग और पार्ट्स ऑफ इट वर रेस्टिंग। हम इसको रीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं, यानी वो रीपोलराइजेशन की स्टेट थी, फिर वो डीपोलराइज होता है। तो अगर हार्ट कॉन्स्टेंटली डिपोलराइज स्टेट में रहे तो वो खत्म हो जाता है, इट गोज इनटू एसिस्टली और मर जाता है इंसान। लेकिन अगर वो मुसलसल रिपोलराइज्ड स्टेट में रहे तो भी खत्म हो जाता है। सो ये दोनों कैफियतों का ना बहुत जरूरी है। तो हमें इस मौके को बहुत गनीमत समझना चाहिए कि हमें बहुत जमाने के बाद शायद हमें डूइंग मोड के अलावा एक जिंदगी गुजारने का मौका मिल रहा है बीइंग मोड की।
तो इसको गनीमत जानिए और आइए आज देखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं ताकि हम नेचर के बिल्कुल करीब हो जाएं, और जैसे पानी है, जैसे जंगल हैं, जैसे दरख्त हैं, कि वो सब बीइंग और डूइंग मोड में जाते हैं, इस तरह हम भी बीइंग और डूइंग मोड में जाएं. लेट अस डिस्कवर व्हाट यू कैन डू इन द नॉट डूइंग मोड. इंटरेस्टेड? चाहेंगे आप इसके बारे में जानना? Of ओके. course, of course. ओके जी. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आपको मैं एक मजे की बात सुनाऊं, जो मैंने बहुत जमाना पहले, पहली दफा मैं मालदीव्स गया तो उतरा एयरपोर्ट से, तो हमारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ था. तो उस बोर्ड पे इतनी मजे की बात लिखी थी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी थी. लिखा ये था, वेलकम टू मालदीव्स, वी हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग. यानी आइए, तशरीफ लाइए मालदीव, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम वो हैं जिन्होंने इस आर्ट को परफेक्ट किया है कि कैसे कुछ नहीं किया जाता. और मजे की बात यही थी कि हम उस आइलैंड पे गए, रहे कुछ दिन, तो वहाँ कुछ भी करने का नहीं था. तो जैसे आप कहीं बड़े शहरों में जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन्स में जाते हैं, तो कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी म्यूजियम देखने जा रहे हैं, कभी ये करें, कभी वो करें. सो कभी राइड्स हैं, कभी सिनेमा है, कभी ड्रामा है, कभी फर्स्ट फेस्टिवल है, कभी पेंटिंग्स देखने जा रहे हैं. लेकिन यहाँ आप मालदीव्स में कुछ भी नहीं करते. Nothing to do. So it's a great feeling to sometimes be in this state that we are in. अच्छा जनाब, तो अब आते हैं कि क्या करें. ये जिंदगी का मालदीव आज हर घर में मौजूद है, तो आइए देखें हम क्या करें. पहली चीज तो ये है कि मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अपने इंटरनेट कनेक्शन को एक नया मानी दें. इंटरनेट कनेक्शन को नया मानी पहली एक्टिविटी है ऑफ डूइंग नथिंग. नया मानी क्या है कि एक तो ये कि इंटरनेट आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए आजकल. सो इन्वेस्ट सम मनी इन मेकिंग श्योर दैट यू हैव अ वेरी वेरी गुड इंटरनेट. और बहुत सारी चीजें फिर आगे चल के जब हम बात इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इंटरनेट के बगैर हो ही नहीं सकती. सो हैव अ वेरी पोटेंट इंटरनेट सर्विस अवेलेबल टू योरसेल्फ. मैं और आप भी इस साथ जो अपने व्यूअर्स के साथ बातें कर रहे हैं, इंटरनेट की वजह से कर रहे हैं. कोई फजूल कनेक्शन हो, जैसे कि हमारे पहले वाली टॉक में हुआ था, तो फिर किसी को पता ही नहीं चलना था, वो कह रहा था जी ड्रॉप हो गया, पता ही नहीं चला, ये वो, यू नो. सो होपफुली आज सिचुएशन बेहतर हो रही होगी एंड पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग ऑन दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन. इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है व्हाट विल यू डू व्हाइल यू आर डूइंग नथिंग. लेकिन नया मानी क्या है? नया मानी ये है कि एक और इंटरनेट है जो आप डिस्कवर करिए, पर इसका नाम रखिए इंट्रानेट. इंटरनेट आपको दूसरों से मिलाता है, इंट्रानेट आपको आपसे मिलाएगा, अंदर कनेक्ट. लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी. एक फिर और भी है, और वो है विदाउट नेट. एक वो है जिससे आपकी मुलाकात इन दिनों हो सकती है जिसके लिए किसी नेट की जरूरत ही नहीं. इनफैक्ट जो सारे नेट्स को आपसे आजाद कर देता है. तो 3 तरह की कैफियतें हैं: इंटरनेट, इंट्रानेट एंड मीटिंग समबडी विदाउट नेट. तो अब ये बूझने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि विदाउट नेट किससे मिल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो वो है ना, जो महबूब है, वो है जो आपके अंदर जीता है, उससे मिलने के लिए किसी नेट की जरूरत नहीं है. तो आजकल थोड़ा सा वक्त निकालिएगा उससे मिलने को, जिससे आपको मिले हुए बहुत देर हो गई. आप उससे मिले ही नहीं कभी, और उससे मिलने के लिए कोई नेट चाहिए ही नहीं. और इसमें जो आप अमेज होंगे वो ये है कि जब आप उससे मिलते हैं जो महबूब है और आपके अंदर ही बसता है, तो आपको यूं लगेगा कि आपकी उससे जो मुलाकात हो रही है वो मुलाकात वीडियो लिंक से भी ज्यादा स्ट्रांग है. उसमें आपको खुशबुएं महसूस होंगी, उसमें आपको इत्र का एहसास होगा, उसमें आपको
दिल में कलियां चटकेंगी, उसमें आपको ऐसी कैफियतें एक्सटेटिक फील होंगी जो किसी मीटिंग में मुमकिन ही नहीं होती, जो इंटरनेट बेस्ड हो या जो इंटरनेट बेस्ड। ये जो कमाल है विदाउट नेट मीटिंग्स का, ये करना शुरू कीजिए हर रोज। हम इससे पहले अपने महबूब से, खालिक हकीकी से नमाजों में मिलते रहे, लेकिन यकीन करिए जेब में इंटरनेट का कनेक्शन डालकर, मोबाइल डालकर, हम उससे असल में कभी नहीं मिले, एक्सक्लूसिविटी में नहीं मिले अपने महबूब से। तो ये एक्सक्लूसिविटी पैदा करना, आपको पता है ना, जब आप महबूब के साथ होते हैं ना, तो आपको ये ख्वाहिश होती है कि कोई और ना हो, मैं और तू, और फिर तू और मैं, और फिर और मैं और तू खत्म, हम दोनों एक। ये जो कैफियत है, ये मौका है हम सबको कि इसको एक्सपीरियंस करें। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, थोड़ा सा वक्त निकालिए खलवत का, जिसमें आपकी उससे मुलाकात हो जाए, जिससे मिले ज़माने गुजरे, उनसे ज़रूर मिलिएगा। और जब आपकी खलवत होगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपने कितना मिस किया है इसे, कितना इम्पोर्टेंट था ये रिश्ता जिसको आप इस जमाने में कायम कर सकते हैं। और फिर जब कोविड-19 चला जाएगा, ये एहसान आपके ऊपर करके कि आपकी उससे, अपने महबूब से मुलाकात हो जाएगी, और फिर ये मुझे यकीन है कि फिर ये आशिक और माशूक कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और ये रह जाएगा आपके साथ ही, कभी नहीं जाएगा आपसे दूर। दूसरा हिस्सा क्या है? इंट्रानेट। इंट्रानेट ये है कि आपको सबसे पहले ये बात को एंजॉय करने की जरूरत है कि कुछ ना करना इज ओके। ये जो आपको बताया गया है ना बचपन से कि कुछ ना करना, टाइम जाया करना है, दिस इज नॉनसेंस। ये मैं आपको एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बता रहा हूँ। समटाइम्स वी नीड टू बी इन दैट स्टेट ऑफ experiencing as if we were almost dead, ऑलमोस्ट। देखिए जब आप सो जाते हैं कितना मजा आता है सोने का, तो सोए हुए इंसान की सवाए इसके कि उसका तनफुस और उसके बाकी निज़ाम चल रहे होते हैं कुछ, उसमें और मरे हुए आदमी तो कोई फर्क नहीं होता, दोनों के लिए जो मर्जी हो जाए, किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा होता। तो ये तो एक कैफियत है जिसमें कि आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, लेकिन आप बाकी तमाम दुनिया से डिसकनेक्टेड हैं। ये जागते हुए एक्सपीरियंस करना एक मेडिटेटिव सी कैफियत होती है, और ये भी बहुत ज्यादा थेराप्यूटिक, बहुत थेराप्यूटिक। और इसको अगर आप समझ जाएं और इसको एंजॉय करना शुरू कर दें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस मेडिटेटिव कैफियत में फिर आप एक दुनिया में, एक दुनिया खुलेगी आपके सामने जिसमें आप रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। किन चीजों पर? चीजों के मानी पर, डीपर मानी पर। ये मौका है कि वो चीजें जिनको आज तक आपने समझा हुआ है कि आपने समझा हुआ है, उनकी गहराई में जाने का टाइम है। ये कभी नहीं किया आपने, तो नए सिरे से वो तमाम बातों को रिविजिट कीजिए जो कि आपको कही गई थी कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। आप हैरान होंगे कि उनमें से बहुत सारी बातें तो सही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जब आप उन्हें रिविजिट करेंगे उस रिफ्लेक्टिव स्टेट में, तो आपको उन पर खुद हंसी आ जाएगी कि ये आज तक मैं समझता रहा ऐसे ही है। तो जब आपने उसको डीपर मीनिंग में जाके देखा, खुद अपने जहन, अपने इल्म, अपने इदराक को लेकर देखा, तो आप हैरान हो गए कि वो वैसे था ही नहीं। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे काम, बहुत सारे मानी, बहुत सारी चीजें, उनके वो मानी है ही नहीं, वो रिश्ते वो है ही नहीं जो आप समझते रहे हैं आज तक। लेकिन ये कब होगा? जब आप मेडिटेटिव स्टेट में उनके बारे में गहराई में जाएंगे, आप उनके बारे में रिफ्लेक्ट करें। ये जो एक कैफियत है इंट्रानेट, ये बहुत मजे की है। और नए मानी तलाश करने में, नए मानी जिंदगी के, नए मानी रिश्तों के, नए मानी उन चीजों के जिनकी आपने डेफिनेशन हमेशा से परमानेंटली करके और ताक पे सजा दी है, ये सब नए मानी आप तलाश कर सकते हैं अगर थोड़ा सा वक्त रोजाना आप निकाले इंट्रानेट, अंदर कनेक्ट होकर अपनी जात से।
ये जो कैफियत है इसमें आप कर सकते हैं जनाब इंट्रानेट कैफियत में, जिसको मैं कहता हूं रूहानी वजू। रूहानी वजू, ये रूहानी वजू इसलिए बहुत जरूरी है कि वो जो पहले वाली कैफियत थी ना, जहां नेट चाहिए नहीं था, वहां पर आपके महबूब को ये बात बहुत पसंद है कि उसके साथ जब आप खलवत में हो तो वो जो इश्क की नमाज पढ़नी है वो आप वजू की कैफियत में पढ़ें। आप पता है ना नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है अगर आप बावजू हो, बल्कि यूं कहें कि वजू के बगैर तो नमाज होती ही नहीं। लेकिन ये जो इंट्रानेट वजू है, रूहानी वजू जिसका मैं नाम रख रहा हूँ, इसमें आपको क्या क्या आलाइशें हटानी है। ये आलाइशें साबुन से कोविड-19 की तरह धोने से नहीं हटती। ये 3 दफा नाक में पानी डालने और गले में गरारे करने और कुर्ली करने और हाथ धोने और टखने साफ करने और धोने से नहीं होता। इस वजू में जो रूहानी वजू है, इसमें आपको सबसे पहले अपने लिए जो काम करना है वो ये है कि ट्राई टू गेट रिड ऑफ गिल्ट। ये जो गिल्ट है ना, ये आपको कभी आपको अपने आप से मिलने ही नहीं देती। हर वक्त आपको उलझाए रखती है इस चक्कर में कि तुमने ये गलत किया, तुम बड़े गुनाहगार हो, तुमने फलां कर दिया। तो एक होता है इज्जो इनकसारी, उस इज्जो इनकसारी में रहकर फॉरगिवनेस मांग लेना अल्लाह से, और उस फॉरगिवनेस से इस्तगफार की कैफियत में गिल्ट से आजाद हो जाना। ये जानकर कि मैं अब धुला धुलाया हूँ। गिल्ट बहुत तंग करती है। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी डैमेज मैं देखता हूँ एज ए साइकाइट्रिस्ट दैट इज डन इन पीपल बिकॉज ऑफ द गिल्ट्स दैट दे आर कैरिंग फॉर नो राइम और रीजन। और मोस्टली गिल्ट होती है उन कामों के लिए जो कि बहुत पहले हो चुके हैं और अभी नहीं किया आपने, कोई बचपन में हुए थे या उसके बाद हुए थे और वो गुजर गए, खत्म हो गए, लेकिन आपने उनको, उनका वजन बोझ अपने कंधे पर उठाया हुआ है, अपनी कमर पर लादा हुआ है, उसके उस बोझ के नीचे दबे चले जा रहे हैं। इसको हटाइए। इस्तगफार इसीलिए है कि आप इसमें से निकल सके। लेकिन अगली क्या चीज है? शेम। हर वक्त हम एक शेम्ड स्टेट में भी रहते हैं। ये भी नहीं आपको मिलने देता अपने आप से और उससे कि जिससे आपको मिलने की जरूरत होती है। लेकिन तीसरी और चौथी चीजें जो कि आपको हटानी है इस रूहानी वजू में, उसका ताल्लुक है दूसरों से। ये दोनों का ताल्लुक आपकी अपनी जात से। वो क्या है? रिवेंज की कैफियत, बदला लेने की कैफियत, वेंजियंस। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अब हिसाब बराबर करके दिखाऊंगा। ये जो कैफियत है, इस कैफियत के साथ जिस वक्त आप महबूब के पास जाएंगे ना, तो आपको खुद भी अपने आप से घिन सी आएगी। पता क्यों? इसलिए आपको घिन सी आएगी कि रिवेंज अगर वो लेना शुरू करे आपसे, उन चीजों का, उन कारनामों का जो मैंने किए हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर मैं कहाँ छुपूंगा कि उससे तो कोई छुप ही नहीं सकता। तो ये वेंजियंस जो आप लिए फिर रहे हैं अपने अंदर, और मैं लिए फिर रहा हूं अपने अंदर, बदले की आग जहां जल रही है, वहां ये रूहानी वजू इस आग को बुझा देगा। और जैसे ही आपसे बुझाएंगे ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी को माफ करना। अफ दरगुजर की कैफियत में फॉरगिवनेस, ये है आखिरी कैफियत वजू की, रूहानी वजू की, फॉरगिवनेस। इतना बोझ हमने उठाया हुआ है ना लोगों से बदले लेने का और उनके बारे में सोचने का, कि हमने उनको अगर माफ करना शुरू कर दिया आजकल इस इंटरनेट स्टेट में, तो यकीन करें आप इतने लुत्फ में चले जाएंगे, इतने लुत्फ में चले जाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे पता है कि माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर वक्त तो हम खुद माफी मांगते रहते हैं। मुझे ये यकीन है, और मैं तो बहुत गुनहगार सा आदमी हूँ, मुझे इतना पता नहीं है रूहानी बातों का, कि मुझे ये पता है कि वो किसी से मांगना नहीं चाहिए जो आप खुद किसी को दे ना सकते। ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ मोहतर, और आपसे 100 रुपये लेने आ गया। तो आप कहेंगे जनाब आपसे तो मैंने 1 रुपया मांगा था, वो तो दिया नहीं था डॉक्टर साहब आपने, मुझसे आप 100 रुपये लेने आ गए। तो मुझे शर्म नहीं आएगी उससे हर वक्त दरफो दरगुजर मांगते हुए, माफिया मांगते हुए, जबकि मैं खुद किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
और ये कौन लोग हैं जिन्हें आप माफ करने के लिए तैयार नहीं है? ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका नुकसान कहीं बचपन में किया था, जिन्होंने आपके साथ ज्यादती आज से 10 साल पहले की थी, चले कल ही की थी। यकीन कीजिए, एज ए साइकाइट्रिस्ट आई कैन टेल यू, एज ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आई कैन टेल यू कि वो जो ज्यादतियां थी ना जो आपके साथ हुई हैं, उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी की तश्कील में और आपकी आज की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। अगर आपके साथ वो तल्ख तजुर्बात ना होते जो उन लोगों की बदौलत हुए जिन्हें आप आज माफ करने के लिए तैयार नहीं है, आप वो इंसान ना बनते जो आप आज। सो डोंट थिंक कि आपको सिर्फ वही बनाता है जो अच्छे तजुर्बात होते हैं, स्कूल और कॉलेज ही नहीं सब कुछ बनाते। आप कभी उस दरिया को देखें जो मैदान में बहुत सहल चल रहा होता है, उसकी शोरीदा सरी उन पत्थरों से जन्म लेती है जो उसके ऊपर उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उसे। वो जो पत्थर जिनके साथ वो सर टकराता है, जो उसका रास्ता रोकते हैं, उसको नहीं गुजरने देते, वो उसकी स्पीड में इजाफा करते और उनसे वो छोटे छोटे ग्रेन्स लेकर आता है। उन पत्थरों से जिनके साथ जिन्होंने उसका रास्ता रोका होता है, उन ग्रेन्स को लेकर वो आता है और फिर वो प्लेन्स में जब आता है ये दरिया मुअत्तर, तो फिर वो जमीन को मुअत्तर कर देता है, जमीन को जरखेज कर देता है। किस चीज से? पानी में होता है कुछ नहीं, उन पत्थरों से वो ग्रेन्स लेकर आया होता है, मिनरल्स लेकर आया होता है, स्ट्रेंथ लेकर आया होता है, जो कि फिर मैदान में आकर जहां जहां ये पानी लगता जाता है वहां वहां क्या क्या फसलें उगती हैं, कैसा कैसा सब्जा निकलता है, और फिर ये दरिया जहां जहां से गुजरता है ये उसकी रहमतों का एक बहुत बड़ा जरिया बनता चला जाता है। तो इन लोगों का बहुत रोल था, माफ कर दीजिए उन्हें। आजकल टाइम है, ये वक्त है, while you're doing nothing, to get into the internet connection and then actually enjoy this feeling that I have forgiven that person. And then इस रूहानी वजू के साथ आप दाखिल होइएगा उस कैफियत में जो अगली मैं जिसकी बात करना चाहता हूँ, और वो है इंटरनेट के साथ आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इंटरनेट के साथ जनाब मेरी पहली रिकमेंडेशन तो ये है सब लोगों को कि आप कनेक्ट करिए उन लोगों से जिनसे आपको कनेक्ट किए हुए बहुत ज़माना हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी और आपकी ज़िंदगी में मतलब जिनको हमें मिले हुए बहुत देर हो गई, और ऐसी देर हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी देर हो गई है कि इसमें कौन है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने पिछले दिनों ये डूइंग नथिंग वाली स्टेट में अपनी एक मिस से रब्ता कायम किया जिन्होंने मुझे 7वीं जमात में पढ़ाया था। मैं आपसे नाम ही ले देता हूँ, मिस सल्ला पॉल उनका नाम, वो अमेरिका में रहती हैं अभी। जो उनकी रिस्पॉन्स थी, जो उनके इमोशंस थे इस बात पर that somebody from her student, हजारों उनके स्टूडेंट्स होंगे दुनिया में, और मेरे जैसा एक मामूली आदमी ने जब उनको फोन किया और उनके साथ कनेक्ट किया, क्या राहत थी, क्या उनकी कैफियत थी, मैं आपको बता नहीं सकता। सो प्लीज गो आउट एंड रीच आउट टू दोज पीपल दैट हु लव यू एंड इन फैक्ट यू आल्सो लव देम। लेकिन उनको ये जो डूइंग वाला मोड था ना, उसमें हमने कहीं उनकी अहमियत ही कोई नहीं थी, बस 8वीं जमात की टीचर मेरी जिंदगी में सब क्या है एक साइकाइट्रिस्ट की हैसियत। तो लेकिन the difference that meeting has made within me, the way it has enriched me, मैं आपको बता नहीं सकता कि what has that meant and what has it done for me. It is just unbelievable comfort zone that I find myself in while I am there in that situation with her in that state जो मैंने experience किए। तो उन लोगों से आपका कनेक्शन आपको बहुत मजेदार चीज की तरफ ले जाएगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो उसमें भी इंटरनेट कनेक्शन का बहुत बड़ा दखल है, और वो है वॉलंटियरिंग। मैं ये समझता हूँ, मैं ये कर भी रहा हूँ, खुद भी मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हम सब जरा सोचें तो सही कि हम लोगों की जिंदगी में क्या डिफरेंस ला सकते हैं जो कि अदरवाइज हम नहीं ला सकते थे जब हम बहुत काम कर रहे हैं। मसलन मुझे पढ़ाने का शौक है, तो आई हैव स्टार्टेड टू नाउ वॉलंटियर टू टीच, टू रीच आउट टू those students of mine that I was unable to teach or connect to. Similarly,
you can also reach out in terms of volunteering to those organizations. ये जो आप मेरी इंट्रोडक्शन में कह रही थी, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ आजकल, तो जो मुझे मजा आ रहा है वहां पर काम करके मैं आपको बता नहीं सकता. And what am I doing? I'm doing it only and only through the phenomena of internet. तो इंटरनेट ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं वहां जाके उनके हॉस्पिटल के लिए भी और उनके बाकी कामों में भी हिस्सा ले रहा हूँ. So let us do it. Why not? We can do it. So volunteering is something that you can start to do now for other people, and it will surprise the number of things that you can get done on a daily basis while you are doing nothing. So volunteering is another aspect of your life while you are doing nothing. आखिरी बात, फिर अगर आपका कोई सवाल हुआ मतलब तो मैं उसका जवाब दूंगा. हमने सब लोगों ने जिंदगी में कुछ ऐसे काम सोचे थे जो हम करना तो चाहते थे, लेकिन हम ये सोचते रहे कि कभी वक्त मिला तो करेंगे. तो मिल गया ना वक्त जनाब, अब आप आइए और कीजिए वो काम. इनको मैं कहता हूँ द वर्क ऑफ इनर कॉलिंग. इतनी खुशी देते हैं वो काम जो इनर कॉलिंग वाले होते हैं, जिनका आपका जी चाहता था करने को और आपने कभी नहीं किया था. तो सीखिए ना जनाब वो वाले काम और कीजिए ना वो काम जो आपने हमेशा सोचा था कि आप करेंगे और बड़ा लुत्फ लेंगे. सो बहुत कुछ है इंटरनेट, इंट्रानेट, विदाउट नेट करने का उस जमाने में जब आप कुछ भी नहीं कर रहे. जी अगर आपका कोई सवाल है. Sir, I have two questions. First off, what will you recommend as in terms of books or any other mean that can actually enable us to connect with ourselves more? Is it something that you have tried and you can recommend us as well? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली जब आप दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअली आप फिर कुछ काम ही कर रहे होते हैं. दूसरों की किताब पढ़ना, लिखी हुई किताब पढ़ना एक एक्टिविटी है, वो आप थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे उससे. सो ये जो स्टेट आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये है व्हेन यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, व्हाट इज दैट दैट यू कैन डू. उसमें आप हैरान होंगे कि आपके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, एक रूहानी मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जो आपको कनेक्ट करता जाएगा. इसलिए किताबों के जरिए तो नहीं मैं कहूँगा, मैं ये समझता हूँ कि ये आपके करने का काम है कि दूसरों की किताबों से करने की बजाय जरा खुद मेथड्स ढूंढिएगा. बहुत लोग इसके बारे में मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करेंगे और शायद उनको जरूरत हो किसी गाइड की, किसी ऐसे शख्स की जिसको रूहानी तौर पर अपने बहुत करीब पाते हैं, किसी रूहानी किताब को वो जरिया बनाना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह, हर शख्स का अपना तरीका है और जो आपको पसंद है वैसे कीजिए. मकसद जहन में रखिएगा, कनेक्टिंग विद सेल्फ एंड कनेक्टिंग विद योर महबूब. So last question that I have is that we have children in our home as well. So is it really something that we have to keep them occupied, or what should we do as parents? अच्छा हाँ, ये बहुत मजे का सवाल है. देखिए बच्चों को मैं आपसे अर्ज करूं कि सबसे पहली रिकमेंडेशन तो मेरी है कि लेट्स डू अ रोल रिवर्सल. बच्चों के लिए रोल रिवर्सल, आप यानी हमेशा उनके लिए बहुत कुछ करते रहे, उनको करने के लिए कहते रहे. इस दफा जरा खुद बच्चे बनिए और उनको पेरेंट बनाइए. ये दिस इज वी कॉल इट एम्पथाइजिंग एक्सरसाइज और एम्पैथी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज इन एम्पैथी, कि बच्चों को पेरेंट बनाना बड़ी मजे की एक्टिविटी. उन्होंने चले जनाब आज आप खाना बनाएंगे, आप मुझे पढ़ाएंगे इस्लामियात, आप मुझे पढ़ाएंगे जोग्राफिया, आप मुझे सिखाएंगे कंप्यूटर. बन जाएं उनके स्टूडेंट, बन जाएं उनके बच्चे. उनके कहें जी मैं तो पढ़ा हूँ, मैं तो दिल ही नहीं कर रहा, मेरा तो उठने को, मेरा तो नहाने को दिल नहीं कर रहा, आप मुझे जरा डील करो कैसे करते हैं. तो वो उनकी हरकतें जो वो करते हैं ना आपके साथ, आप उनसे तंग होते हैं हमेशा. इट विल बिकम सच अ गेम फॉर यू एंड फॉर सम टाइम यू कैन डू इट. वेरी इंटरेस्टिंग रोल रिवर्सल. दूसरा मैं आपसे ये भी अर्ज करूँ कि हमारा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन सारे का सारा हमेशा से एकेडमिक होता जा रहा है और हर घर में हम अपने बच्चों से सिर्फ ये पूछते हैं कि तुमने क्या पढ़ा, तुम्हारे क्या ग्रेड आए और तुमने होमवर्क कर लिया या नहीं कर लिया. तो अब तो कोई चक्कर ही नहीं भाई होमवर्क का. तो प्लीज कैन वी स्टॉप दिस एकेडमिक बिजनेस फॉर अ व्हाइल एंड लेट देम डू दैट ऑन देयर ओन एंड स्टार्ट टू गेट अ चांस टू गेट इनटू इंटर नेट स्टेट विद देम
ऑफ एन इंटरनेट टाइप, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, क्योंकि आपके बच्चे आपकी अपनी ज़ात का हिस्सा ही हैं। तो ज़रा सा उनसे जज्बाती लेवल के ऊपर उनकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में जानिए, उनको समझिए। एक चीज़ जो आप और भी कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो ये है कि यू कैन नाउ दीज डेज स्टार्ट टू डेमोन्स्ट्रेट टू देम व्हाट यू हैव ऑलवेज ट्राई टू टीच देम। हमने बच्चों को वेसल बनाया हुआ है जिसके अंदर हम इल्म और हुनर और बहुत सारी इस्लामियात और बहुत सारी रूहानियात और बहुत सारी चीज़ें उंडेल रहे हैं। तो जनाब, उंडेलना काफ़ी नहीं होता और ना ही बच्चे वेसल्स हैं। एक्चुअली डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। और जिस वक्त आप चीज़ें इकट्ठे बैठ के डिस्कस करके करने की बातें करना शुरू करेंगे ना, तो आपका टाइम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। ये लेक्चर्स देना बिठा के और शिकारियात के किस्से उनको सुनाने के लिए, लेट अस डू थिंग्स टुगेदर, of course maintaining all the regular COVID-19 precautions, putting them in place. Let us do these. This is doing things with the children that will help and that would make a new relationship with you, demonstrating what you have always taught. And with that, we have actually reached the very end of our session. Thank you so much, Dr. Moudud, for taking time out of your busy schedule and guiding us through your knowledge. This actually means a lot to us and to our listeners as well. Thank you, sir. Thank you. Absolute pleasure. Absolute pleasure. Allah Hafiz. Allah Hafiz.